9 months of pregnancy, 3 months preconception, 2 years of infancy. Whatever you do during this period will impact the lifelong of the baby. अगर कोई माँ 5-10 मिनट भी रोज सुबह शाम 2 समय माला फेरेगी तो बच्चे पे भी अच्छा असर लाएगा, क्योंकि अच्छा हार्मोन अगर रिलीज हो रहा है बॉडी में, सेरोटोनिन रिलीज हो रहा है, डोपामिन रिलीज हो रहा है, वो बच्चे पे असर डालता है। वेस्ट में बहुत रिसर्च है जो बताती है कि चैंटिंग ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखती है, चैंटिंग आपके स्ट्रेस लेवल्स को कम रखती है, एंग्जाइटी को कम करती है। एक साधारण माला फेरना जैसी भी एक्टिविटी आपके मेंटल हेल्थ को मदद करती है। Garb Sanskar in Western science is prenatal psychology. We have been practicing Garb Sanskar since last 18 years with our patients, with our mothers at Pretty Mom. They both have combinedly written this book together, which is a complete guide on Garb Sanskar, the practices, the techniques. The mothers started asking ki, how do we do it? Like if we tell them ki, okay, you should read these mantras, you should chant these mantras, you should be doing these coloring activities, drawing activities, painting activities, some intellectual activities. So they said, see, if you tell them you have to do it, probably they forget. So we thought we would combine all these things which we ask them to do in one book where they have everything to do. This is 260 pages of book, and we generally say the pregnancy is 260 days. Hello and namaste. This is once again your friend and guide from 9 and Beyond, आपका अपना holistic pregnancy app based on ancient Vedic wisdom of Garb Sanskar. सबसे पहले let me welcome Dr. Tushar and Dr. Smita. Thank you so much for coming and spending time with us and educating our audience and actually empowering them by your knowledge and wisdom. Dr. Smita is a gynecologist and Dr. Tushar is a pediatrician. So they're not only married in this physical world, their professions are married, their compatibility is married towards this platform. Dr. Smita, who is a very renowned gynecologist from Jaipur, is also taken her medical practices and knowledge beyond her just the simple line to make it more wholesome for all of you by being a certified lactation consultant. She is a certified, internationally certified actually, prenatal and childbirth educator, also trained and experienced in laparoscopy in gynecological disorders, giving you a 360-degree wellness, holistic health. She brings on this platform not only just the medical sciences, but also the practice of Garb Sanskar, which is the beautiful amalgamation arising from her passion for basically natural physiological childbirth. Pursuing this passion, she realized कि ये दोनों चीज़ें जब आपस में मिलती हैं तो ही ये process complete होता है. And that is why she has combined these two sciences. Complementing her in her profession is her husband, Dr. Tushar, who is a very, again, famous pediatrician from Jaipur. He is a practicing NICU in charge at Holy Family Hospital there. He is also a fellowship holder in neonatal science of pediatrician, and he also holds a postdoctoral certificate in adolescent medicines. But again, his passion for a complete 360-degree view on these sciences makes him very passionate seeker of emotional well-being and health. Right, doctor? So keeping all this in mind, and basically both of them very spiritual in their outlook, absolute seekers in their heart, have brought for patients in their Jaipur, which of course are spreading outside Jaipur now, a beautiful comprehensive platform called Pretty Mom. This is the platform which combines your ancient knowledge with modern sciences so that every couple who is planning a pregnancy, is pregnant, and the supporting families, a very enlightened, positive experience of getting into parenting, finding the parenthood. And that is what their ambition drives them for offering their services, which are absolutely starting from the beginning, which is conscious conception advice. It goes to your
prenatal and pregnancy yoga. Then it gives you Garbh Sanskar. It teaches you um, adolescence counseling, parenting guidance, and also basic neonatal care. On this platform, they have offered so much. They do not stop here. Taking their knowledge forward, absolutely believing in the science of Garbh Sanskar, they both have combinedly written this book together, which is a complete guide, a comprehensive guide on Garbh Sanskar, the practices, the techniques, very rightly named wow, because it brings that wow factor into your life. And it is wow because it is the womb, the world of the womb, making the world of the womb a beautiful place for the divine soul to come in, take birth, and come out and make this world a beautiful place to live in. So let's get the wow factor for you all today from both of them. So to begin with, let's just start. How did this concept of basically the physical, mental, emotional, spiritual well-being during the pregnancy journey, and of course, the concept of the book come around between the two of you? See, as you said, we have been practicing Garbh Sanskar since last 18 years with our patients, with our mothers at Pretty Mom. So initially came the first book, which is Spiritual Secrets of Pregnancy and Childbirth, written by Dr. Tushar, Right. where we gave the concept of Garbh Sanskar, where we gave them the concept of, say, doing all these Garbh Sanskar practices in pregnancy. But then the mothers started asking ki how do we do it, like if we tell them ki okay, you should read these mantras, you should chant these mantras, you should be doing these coloring activities, drawing activities, painting activities, some intellectual activities, so they said see, if you tell them you have to do it, probably they forget. At times True. it's like okay, this is your homework, now you go and do that. So half of them were doing it, half of them were not doing it. So we thought we would combine all these things which we asked them to do in one book where they have everything to do. This is 260 pages of book, and we generally say the pregnancy is 260 days. So we've just each day you have Amazing. one page to cover on. Such a beautiful रादर मैं thought. तो ये कहना चाहूँगा कि 260, 260 days of 360-degree coverage Yeah. of your pregnancy journey. Yes. it's just Beautiful. like people as Smita was saying कि people used to ask, तो अगर in short कहूँ तो पहले लोग जानना आते थे कि हम क्या पढ़े, तो मैंने पहली वाली पुस्तक ली थी। अब वो उन्होंने पढ़ ली, पढ़ के उन्हें पता लगा कि बहुत कुछ करने से बच्चे पे उसका असर पड़ता है, तो फिर वो पूछने लगे अब हम क्या करें, तो करेंगे लिए। सो अगर सिंपली कहूँ तो पहली वाली पुस्तक जो थी वो तो लाइक जैसे हम GPS पे कहीं जाना होता है तो वो मैप देख लेते हैं, और ये उस मैप पे वॉक करने का तरीका है। तो दिस इज द एक्चुअल क्या बात है, व्हाट अ राइट वे ऑफ पुटिंग कि पहले आपने उनके लिए मैप बनाया, फिर आपने उनको वो ड्राइव दी Right. जिससे वो पॉइंट्स जा मार्क कर सके। दिए। that is making their life as simple as possible. और इससे ज़्यादा क्या चाहेंगे आप लोग? And as WHO also says, health is about not mere state of well-being, it is emotional, physical, mental, and spiritual well-being. Absolutely. So if combined all these four aspects, four dimensions into this book, we've divided this book into 4 different parts, which is spiritual, emotional and mental, intellectual, and physical. Excellent. So basically, this book is like a comprehensive platform of holistic health with modern concepts. Am I right, doctor? Yes. Yes. Beautiful. So in this book, what are the core principles of Garbh Sanskar which you have used, emphasized, or the techniques or the practices which you are basically propagating here? So as I told you, what we have been doing, probably we have incorporated everything, starting from, as you said, mantra chanting. So what first mantra to be, say when you get up in the morning, what is the first thing you do in the morning before getting up from your bed, on your bed, and then as you get up throughout the day, what different practices you need to follow on. So it's a complete thing which will give you each day of practice, which you can follow on, and then starting your day with the spiritual thing, then whenever you have time. And the best part is this book is for both. It is not a mother's book. Absolutely. It is a book
for the couple. We are insisting it is the couple which is pregnant. Yes. So we've actually coded the book. So the first coding to ये है कि I think when you see the book, it has 5 colors of flowers. So those flowers, if you see the book, they have those 5 colors. Okay. So the orange color, the yellow, the purple, the pink. So this coding is specifically done the 5 sections. So the spiritual section is the yellow section. Then comes the emotional section. There's a pink section. Then comes the intellectual section. There's a blue section. And the physical section, there's a purple section. And the last is the scar book or the yellow section. So this is a convenient coding Okay. for dividing the book. Another coding we've used is the pages, as you told you. The father is equally important, and I don't think that there are many books available which are for both the couple, both the partners, the male as well as the female. So most of them just focus on the women, while the father is the most important person. Right. So all the activities are duplicated, so that the father also has to participate in those activities. So we put a mustache for all the books, the pages that are meant for the father, and a bindi for all the pages that are meant for the mother. So Plus, we've kept the size also like that both of them can do it together. together. So, That's okay. our purpose. Like once you do it, so one page the father would be doing, the other page the mother would be doing. So they can do it together. And another interesting aspect Spending I'll tell you time about the together. book is that we are living in the dates of AI and all. So this book, whatever illustrations this book has, are all handmade illustrations, all hand painted, 100% of them. And incidentally, our artist Sachi was also expecting while actually she drew this. That is. So you can imagine the passion which is coming to this book and the love which is already there in this book. Amazing. So this is the technical part of creating the book. What are the core principles of Garsanska you're touching in this book? Okay, so the core principles which we are touching in this book is, as you were talking about, that we actually are aware of the mental, physical, and emotional aspects. Everybody acknowledges those aspects. We talk of EQ, IQ, all these things. We know about physical strength, body, and all. But we need to understand, as humans, we have to understand that everything, just like the earth revolves, so there is always an axis around which you revolve. A circle is drawn around the center. The center may not be seen always, but without a center, there cannot be a circle. True. In the same manner, the spirituality is the axis of our being. Life can revolve only if there is an axis. Very well. And if the axis is stable and not moving, then only movement can take place. Any movement in the world can take place only when there is something which doesn't move. And that something which doesn't move stays stable and strong. And many of times, hidden from our vision is actually the spiritual part of it. Absolutely. So, as people who, as humans, we need to understand the finer and the deeper aspects, the esoteric meanings of our existence. And that is why this book talks about, is a sort of a spiritual primer. It sensitizes you to the importance of all those activities. वो सब गतिविधियाँ जो पुराने समय में हमारे घर के बड़े लोग हमें बताते थे, वो सबका महत्व क्या है और वो कैसे होने वाले बच्चे पे और माँ पे एक अच्छा असर डाल सकते हैं. तो सब गतिविधियाँ कि अगर आप सुबह उठते ही कराग्नि में लक्ष्मी करवती सरस्वती करते हैं, आप महामृत्युंजय बोलते हैं, गायत्री मंत्र बोलते हैं, तो वो उन सब का साइंस क्या है, उन सबको बोलने का आपको लाभ क्या होगा और वो सब कब कैसे बोलना है. तो कौन सा मंत्र आपको बिस्तर से उतरने से पहले बोल लेना है, कौन सा पहली बार आप खोलते बोलना है, कौन सा जमीन पर पाँव रखने से पहले बोलना है, कौन सा आपको खाना खाते हुए बोलना है. तो इस प्रकार से एक स्पिरिचुअल प्राइमर भी है, क्योंकि नए लोग जो धर्म को समझना चाहते हैं और दैनंदिन रोज के दैनिक क्रियाकलापों को समझना चाहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. और आजकल तो नए लोगों में बहुत रुचि है इस चीज़ में, लेकिन वो फ्रॉम द सोर्स चाहते हैं चीज़ को. तो चूँकि सोर्स से चाहते हैं, इसलिए हमने उसको ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट, साथ में उसका प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में, साथ में उसका मीनिंग इंग्लिश और हिंदी में साथ में दिया है, ताकि हर प्रकार से एक वाइडर उसके साथ अपील के साथ में ये बुक सब लोगों को समझ में भी आ सके, पढ़ भी सके और वो उसका ज़्यादा से अधिक लाभ ले सकें स्वयं के लिए और बच्चे के लिए. तो बहुत सारी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ हैं. चैंटिंग इज़ वन एक्टिविटी. तो हमने उसका सब जगह साइंटिफिक बेसिस भी दिया है, क्योंकि अब लोग वेस्ट में बहुत रिसर्च है जो बताती है कि चैंटिंग ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखती है, चैंटिंग आपके स्ट्रेस लेवल्स को कम रखती है, एंग्जाइटी को कम करती है. एक साधारण माला फेरना जैसी भी एक्टिविटी आपके मेंटल हेल्थ को मदद करती है.
वो ये इतना हम लोग आज बात करते हैं मेंटल हेल्थ मेंटल हेल्थ मेंटल हेल्थ, सबसे आसान तरीका है अगर कोई माँ 5-10 मिनट भी रोज सुबह शाम 2 समय माला फेरेगी तो बच्चे पे भी अच्छा असर लाएगा, क्योंकि अच्छा हार्मोन अगर रिलीज हो रहा है बॉडी में, सेरोटोनिन रिलीज हो रहा है, डोपामिन रिलीज हो रहा है, वो कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है वो बच्चे पे असर डालता है। तो चैंटिंग जैसी एक्टिविटी है, फिर म्यूजिक, तो म्यूजिक का बहुत इसमें साइंस है कि कौन सा म्यूजिक किस दिन सुने, मंडे को कौन सा सुने, ट्यूसडे को कौन सा सुने, वेडनेसडे को कौन सा सुने, फिर कौन कौन से म्यूजिक का क्या क्या एस्पेक्ट है। फिर छोटी छोटी चीज़ें जो हमको पता ही नहीं, जैसे जैसे अगर आपको पता हो तो पुराने समय में लोग कहते थे कि अपने घर में बाल कृष्ण का चित्र लगा के रखिए, जी क्योंकि भगवान कृष्ण का बाल रूप का चित्र अगर आप लगा के रखेंगे तो उसका बच्चे पर असर पड़ता है। और कितनी मदर्स हमारे पास आती है जो बताती है कि हमारे बच्चों के बाल कर्ली हैं क्योंकि हमने कर्ली हेयर वाले लॉर्ड कृष्णा का चित्र कमरे में लगा रखा था। तो या बालकांड सुनिए रामायण का। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो करनी, उनका लाभ क्या है, उनको करने से क्या बेनिफिट दोनों को होगा, मदर बेबी ड्यू को, फादर को, और वो कैसे करनी, तो वो सब चीज़ें हमने इसके अंदर अधिक से अधिक इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करी है। और जैसा आपको बताया कि स्पिरिचुअल, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, पूरे 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड। और हर चीज़ का आपने साइंटिफिक वैलिडेशन दिया है बिल्कुल। सो दैट दे नो द लॉजिक बिहाइंड इट, राइट, व्हिच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। वो पहले शुरू किया है, जहाँ सेक्शन शुरू बिल्कुल। किया है उस सेक्शन की बिल्कुल। शुरुआत में पहले हमने साइंटिफिक एविडेंस दिया है, ताकि साइंटिफिक एविडेंस से लोग ये कन्विंस हो जाए कि जो चीज़ हमारी सभ्यता को, हमारी समझ को, कलेक्टिव समझ को, हमारे समाज को और हमारे कल्चर को पता थी, वो चीज़ का वेस्टर्न लोग यूटिलाइज करके बता रहे हैं हमको, अरे ये तो हमें पता था सही कि बात है। meditation So beneficial है, Garb meditation- Sanskar in Western science is prenatal psychology. Absolutely. So that's that. हाँ, उनका एक टर्म भी है इसके लिए, आजकल तो वहाँ बड़ा एक नया टर्म चला है, उसके बहुत बात करते हैं लोग कि प्री नेटल साइकोलॉजी, अर्थात जो बच्चा बॉर्न होने वाला है उसका बॉर्न होने के पहले से साइकोलॉजी भी क्या क्या चीज से असर किया जा सकता है। तो वो प्री नेटल साइकोलॉजी और कुछ नहीं है, वो गर्भ संस्कार का ही अंग्रेजी See, WHO has also stressed first 1,000 days of the life of the mother are the most important. Right. Not only mother, the whole environment which you are giving to. So that starts 3 months preconception, 9 months of pregnancy, and 2 years of infancy. जी। So they say whatever you do during this period will impact the lifelong this thing of the baby. Right. So because 80 to 85% of the brain development is happening during pregnancy. Right. So whatever seed you put in, or say whatever imprint you put it during that brain development, जी। that becomes a permanent imprint for the babies. So it is more like the baby is like a sponge right now, is absorbing everything from the environment which is being provided. True. Like maybe we are the amount of stimulus which is getting to the baby is n number of times more during pregnancy as compared to once the baby is born. So the baby gets all those stimulus, and say it becomes a part of its neuronal connections. So that is how the brain development is happening during pregnancy. So if you give him a positive environment, the baby tries to absorb the positivity from that. If you will give him a negative environment, lot of stress, lot of anxiety, so the baby is again comes up with the armor kind of thing. So that is what we don't need कि बच्चा उस स्ट्रेस को लेके ऑलरेडी आए और फिर वो उसको रिफ्लेक्ट करे, वो स्ट्रेस उसमें रिफ्लेक्ट करे बेसिकली। दीवार पे गीला सीमेंट लगा दें तो वो गीला सीमेंट अगर सेट हो जाएगा तो हार्ड हो जाएगा, फिर आप इसको बदल नहीं सकते। फिर आप पेंट कितना ही करते रहे, जो उसमें बाहर आ गया वो आ गया। तो वेट सीमेंट का ही एनालॉजी है बच्चे के बढ़ते हुए ब्रेन का। तो जिसपे इसलिए तो मैं कह रहा मजाक में मदर से कहता हूँ, आती है कि गुस्सा बहुत करता है, लड़ाई करता है, बच्चा ऐसे बोलता है। तो कई बार स्कूल में बड़ा कॉमन है कि जो नर्सरी में या प्री स्कूल में बच्चे जाते हैं, प्री स्कूल में, तो सब मदर जाके कंप्लेन करना शुरू करती है टीचर्स को और बोलती है कि ना आप ये क्या सिखा रहे हैं, ऐसे बच्चा ऐसे करता है, ये करता है, गलत सही जो भी वो करता है उसके ऊपर। तो मैं उनसे कई बार मेरी टीचर से बात होती है तो मैं उनसे मजाक में कहता हूँ, आप उनसे कहा करो कि मैम बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट मैक्सिमम तो 2 ईयर में हो गया, मेरे पास तो आपने 6 ईयर में भेजा है। तो मैं तो एक तरह से सरफेस को पॉलिश कर रही हूँ, अंदर तो सारी चीज़ आपने, तो केक तो आपने क्रिएट किया, मैं तो सिर्फ ऐसे उस पर टच कर रही हूँ। तो ये हमको समझना होगा कि बच्चे का जो ब्रेन ग्रोथ है वो मैक्सिमल हो रहा है। और बड़ा इंटरेस्टिंग जैसे स्मिता ने बताया कि 3 months प्रायर टू प्रेगनेंसी, Even as we know that Vivekanand का विवेकानंद जी के पास जब एक मदर गई, उन्होंने उनको सुना तो मैंने कहा आपके जैसा तेजस्वी व्यक्तित्व मैं बहुत प्रभावित हुई, तो इतना हो जितना तेज वाणी ऐसी। तो मेरे को
मेरे बालक में इन्हीं गुणों का विकास करना है, एंड यही गुण मुझे मेरे बालक में चाहिए। तो विवेकानंद ने उनसे पूछा कि माँ आपके बच्चे का क्या एज आयु क्या है? है? तो उन्होंने कहा कि 3 वर्ष। तो विवेकानंद बोले कि आप 5 वर्ष लेट हो गए। जी उन्होंने कहा मेरा बच्चा तो 3 वर्ष का है और आप कह रहे हैं 5 वर्ष लेट हो गई। तो उन्होंने कहा कि हाँ, क्योंकि मेरी माँ ने मेरे पैदा होने के पहले ही बहुत कुछ किया। जी तो अगर आप पुस्तक भी पढ़े, माय मदर भुवनेश्वरी देवी बाय विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, ब्यूटीफुल बुक। तो अगर और ये कोई कोई ऐसा नहीं कि एक एग्जांपल भगवान राम, अगर उनका भी जन्म हो रहा है तो यज्ञ किया गया ना, तो आप एक बात को यो समझे, किसी का भी आप आदि गुरु शंकराचार्य, मार्कंडेय ऋषि, कितनी कहानियां हम पढ़ते हैं पुराणों में भरी पड़ी हैं कि भगवान को प्रार्थना की गई, खूब सारी पूजा अर्चना की गई, तब जाके भगवान से आशीर्वाद के तौर पे संतान को लिया गया। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस प्रायर टू कंसेप्शन, ये कॉमनेस्ट इनका डिनोमिनेटर है कि आपको बालक के आने के पहले आध्यात्मिक क्रियाकलाप, आध्यात्मिक कर्म करने होंगे, तो आप बालक को आप ला सकते हैं। नहीं तो ऐसा नहीं आएगा, आएगा तब भी, लेकिन फिर हर तरह की सोल्स है। तो मैंने जैसा आपको बताया ना कि बारिश हो रही है आपकी मुंबई में, तो मिट्टी में तो कुछ भी चीज़ उग जाएगी ना, लेकिन अगर आपको कुछ अच्छे फूल उगाने, अच्छे फल उगाने, तो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, तो आपको उसका ध्यान भी रखना पड़ेगा। और वीट जिसको खरपतवार कहते हैं वो तो अपने आप उग जाएगी, तो उसमें तो एफर्ट नहीं लेना पड़ेगा। you know I'm so convinced over the podcast इतने महीनों के with different experts, और आप भी यही बात बोल रहे हैं। एक्चुअली ये जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, गर्भ संस्कार, ये जो प्रैक्टिसेस, वो बोलते हैं ना कि आप जिस माहौल में हैं आप वही बन जाते हैं, विच इज़ सो ईजी टू अडेप्ट बिकॉज दैट इज़ योर एनवायरनमेंट, राइट। इमेजिन अगर हमारा ये एनवायरनमेंट हम स्कूल्स और कॉलेजेस से ही क्रिएट कर दें। सो पहले तो अगर हमारे माँ बाप अपनी जनरेशन से, शायद उनके माँ बाप के जनरेशन से प्रैक्टिस चली आ रही हो, उसके ऊपर से हम लोग साइंस, आर्ट, इतना कुछ सिखाते हैं। तो अगर हम कुछ एवरी डे अ क्लास ऑन गर्भ संस्कार, बेसिकली ऑन ह्यूमन वैल्यूज़, एक्चुअली वही आचार्य जी ने बोला था कि हम लोग इतनी रिसर्च करते हैं एनिमल्स पे, फर्टिलाइजर्स पे, क्रॉप्स पे, बट ह्यूमन माइंड पे तो कोई रिसर्च करता ही नहीं है। सी वी हैव नो रिसर्च गोइंग ऑन उसकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए। सो अगर हम ये सारी चीज़ें जो आज आप लोग बोल रहे हैं, ये सारी विजडम एक स्कूल लेवल से सिखाना शुरू कर दे, सो जिस क्वालिटी के बच्चे बड़े होंगे, दे विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड द राइट एंड द रॉन्ग। पहला Right? स्कूल कौन सा है? पहला स्कूल होम है। Absolutely. पहले टीचर्स कौन है? पहले टीचर्स माँ और पिता है। बिल्कुल, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को शन अवे नहीं कर सकते, वो उससे दूर नहीं हट सकते, वो उस पर Absolutely. कभी नहीं कर सकते कि हम क्या करेंगे, तो समाज ने No. नहीं सिखाया। बिल्कुल। समाज तो बहुत बाद में आएगा पिक्चर के अंदर, पहले आप आएंगे। अग्रीड। और दूसरी बात जो आपने कही वो बिल्कुल ठीक बात है। तो जब मैंने आपको लेने वाली बात कही थी कि वो बीच छुपा देती है, तो अगर यूँ सोचा जाए तो ये आज हो क्यों रहा है? क्यों गर्भ संस्कार में लोगों का इतना इंटरेस्ट है? ये भी तो हो सकता था कि हम ये सब बोलते रहते हैं, कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेता, बिल्कुल। ये पुस्तक क्यों आई, ये प्रोग्राम क्यों आया, और ऐसे ही कितने के अनेक प्रोग्राम आए, और वो क्यों आ रहे हैं, और क्यों लोग उनको देखते हैं, और क्यों लोग उसको ध्यान से सुनते हैं, वापस हमको कम्युनिकेट करते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं। ये धार्मिकता का, अध्यात्म का, सत्गुणों का बीज हमारे जो जनरेशन से 5,000, 8,000, 10,000 साल पुरानी, उन्होंने हमारे मानस में छुपाया था, बिल्कुल। वही आज प्रकट हो रहा है। तो हम, ये फैक्ट है। तो ये इंटरेस्टिंग टाइम्स टू लिव है, इसलिए इंटरेस्टिंग टाइम्स टू लिव है कि ये कन्फ्लिक्ट अब सामने आ चुका है। तो जो एक सॉर्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट आ रहा है कि हम बाहर तो ये देखते हैं कि अरे छोटे छोटे बच्चे जा करके कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं जो आपको देख के लगता है अरे इतना छोटा बच्चा हो गया, ये तो स्मोक कर रहा है, ये ड्रिंक कर रहा है, ये क्या कर रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम हम साथ में देख रहे हैं कि नहीं, नए बच्चों का इसमें इंटरेस्ट भी आ रहा है, लोग भी इस बारे में बात कर रहे हैं, इस बारे में साहित्य भी आ रहा है, इस बारे में बड़े बड़े लोग भी बात कर रहे हैं, वापस रिसर्जेंस से इंटरेस्ट जग रहा है। बिल्कुल। वो इसीलिए हो रहा है कि वो बीज अब अपनी जगह पकड़ना चाह रहा है, बात ये है। तो वो अच्छा है, मतलब It is Education very good. begins बिल्कुल. before It starts in birth. the womb, but if extended in the society, it will enhance the process, is what I mean, right? So if we all join our hands together, it is going to be a beautiful, wow world to be in. Let's put it like that. And you know the vow, if you read it, if you see the cover, Yeah. the vow is actually reflected in the mom. Yeah. So this vow actually, if you see it, it reads out as mom, but when it's reflected in the down. अगर So उसको it's, हम it's मिटाएं, so when you said the wow thing, actually in the world, becomes- only Yeah. thing that is wow is actually the mom. Being a mom is wow actually. Absolutely. So, like you said, you've already answered my next question in a way, but we can still elaborate.
the prenatal conditioning, right? So I think I'm understanding now Yeah. आपके conversation कि what is prenatal conditioning. Right. Still आप ही समझा दीजिए कि ये क्या है, इसकी क्या अहमियत है, and how it can influence, nurture a better human mind, more spiritual, more dharmic, while you're in the home. Yeah. Exactly. So as we said, ki education begins before birth. So womb is the first platform where you start teaching your baby. So that is what Garbh Sanskar or prenatal conditioning is. So if Ji. you talk about Western world, they will say prenatal conditioning or say prenatal this thing. And our ancient Indian culture says it's as Garbh Sanskar because all the thoughts, emotions are passing to the baby. So whatever a mother does has a definite impact on the baby growing in the womb. So if you are stressed, if you are in anxiety, the whole hormonal chemistry changes and the baby is impacted through that. So in if your hormonal chemistry changes, the baby's hormones also changes. So the baby starts secreting lot of corticosteroids, which makes the babies more irritable, jittery, stressed. They're crying all the time. You don't understand the reason why this baby is crying, why this baby is not a happy baby. So there are difficulties in feeding that kind of baby. Breastfeeding becomes difficult, soothing the baby becomes difficult. Then we try to find out what is the reason. So if you will go into a deeper talk with the mother, then we will realize, okay, this mother was stressed probably at that in during the pregnancy. So that stress is passed to the baby, that effect is passed to the baby, and now the baby is responding to that kind of stress. Okay. So that is the importance of keeping a mother happy in pregnancy, the environment around her positive. So how you can do it basically. So it is not only the spiritual part, it is more Yeah. about bonding with the baby. How do you connect with your baby? How do you talk to your baby? What Okay. all different things you do during pregnancy. So coloring a small thing during pregnancy gives them so much happiness. If you're creating something for the baby in pregnancy, maybe knitting for the baby, maybe designing a nazaria, painting bottles for the babies, or say small things. The mothers in classes, they paint a romper for the baby. So different kinds of activities. So they during that time they feel happy, they feel bonded with the baby, they have memories which they, so everything is a positive environment which you are creating. So that is impacting the This baby. is one part. And there is another part which most people misses, that Garbh Sanskar doesn't only mean what impact the mother or the father have on the baby. When Garbh Sanskar, once you are open to the concept of Garbh Sanskar, then you understand the two-way traffic. So the two-way traffic is baby also has certain impacts on the mother. So if you are open to it, then only you can read them. Then only you are, if you are sensitive enough to it, then you will be only be able to realize it. I'll give you a few examples. We have mothers who come from a family who eat certain type of food, and probably non-vegetarian food. Then they say we suddenly develop aversion towards it because the baby who has come in the womb is having aversion towards that food. So you need that food. Simplest example I'll give. That's from why we are sitting in Mumbai right now. There's a very interesting incident. A very Jija Mata, mother of Chhatrapati Shivaji, when she was pregnant, when she was carrying Shivaji in the womb, she calls her friends and tells them that I have a dream at times that I am sitting on a lion and I am having various fierce kind of weapons in my hand and I am destroying all the enemies of the Hindu Dharma. And I am alone and I am doing, and I have taken the avatar of Devi. So, and this is has a very specific name also in Marathi. So, which means that the mother's dreams or mother's aspirations. So, it's not only that the mother is impacting the baby's brain and baby's development, the baby also is now impacting. So, there are mothers who suddenly they start learning to sing. Some mothers start developing interest in drawing. Some mothers start sketching. Some mothers take up some other activity, and they earlier never had that activity because this is the baby's interests which are being reflected via you. So once you are aware of these facts,
that the baby who's come in my womb is not, as I told you previously, Right. not a biological product of conception. The baby is a human personality, a total soul, an evolved soul, because only an evolved soul can occupy a human womb. Human womb cannot be occupied by an unevolved soul. So you only after a certain level of prayer, certain level of penance, certain level of previous lives, only you can occupy human womb. So a baby who's come to human womb also communicates to the mother. And I have instances on record where mothers have said that pre-abortion they had a talk with the baby before being aborting the abortion. Baby talked to the mother and said that I will not be continuing my journey. I need to leave. There are other instances where baby has shown a specific interest. There are instances where babies have communicated certain things, premonitions. Mothers have had premonition. So like you will be traveling to this place while you're carrying me and this thing. So these are very common. So the baby, it's a two-way talk. So you will only talk back to me when I talk back to you. So that's it. Conversation starts when there's a mutual communication. So the mother and the father need to know that the baby is an individual and where we utilized it, we utilized in one of our hypnosis sessions where we tried to have a baby, the baby was breech probably. So they were advised that probably they need an operative delivery and that's okay because normally also babies tend to, after a certain period of time, in particular in the right months of pregnancy, they usually they change their posture. But interestingly, I said that since I was into that phase of that time, I was doing a lot of hypnosis. So I said, okay, let's do one thing. We'll talk to the baby and convince the baby to come down. The baby can adopt a different posture. And just 2 sessions, and the baby turned. And that The is mother was 32 so happy. to 34 Yeah, weeks of yeah, because- pregnancy, which is not very easy. Yeah, it's not Which is very not easy. very easy And during that interestingly, time of after that, I read about it and I said that there are papers published on it. That yes, in hypnosis, you can turn the baby to a comfortable position where the baby can deliver normally. So this means the baby is listening. There are videos available all over the YouTube where babies clap when parents are singing a song and all. So babies do respond. So babies are conscious beings. So as he said, for breech turning also, we use different kinds of techniques where we use music to say any kinds of music. You put it because the baby tries to adopt the and posture then where he can keep hear moving it down so that the baby can turn towards the music basically and takes the right position. So there are different techniques. So we know that this baby is listening and responding also. And if the mother is talking and telling her repeatedly, "Ki, okay, you are not in the right position to birth. So please change your presentation." So the baby is and I listen and respond to that. I'll Yeah. give you another one-liner. That medicine, there is a concept in medicine which is primum non nocere. What is It's it? a Latin concept, primum non nocere, Okay. which means first, do not do any harm. That's a dictum of medicine. That whatever treatment you are doing, at least don't worsen the condition of the patient. It's a simple rule. Bilkul. First, do not harm. So this is the beauty of the Sanskar because practices. When somebody comes and questions a lot, then I say that okay, even if you don't believe in it, a chanting of Om will not do you any harm. So at least do a Gayatri, do a Mahapratyunjay, do a Ramakrishna. You will realize the benefits by yourself. I don't need to tell you the benefits. You one fine day will come back and tell that you had these benefits. There are mothers who said that they had nightmares and post chanting of particular Sotam, they just nightmares vanished. So it's not doing any harm. And it's better than taking some sedative for your sleep. जी सो वेरी इंटरेस्टिंग कि जब मैं ये सब चीज़ें इतनी बातें सुनती हूँ इट्स वेरी ओवरवेलमिंग इंफॉर्मेशन एंड आई कीप टेलिंग देम बिकॉज आई ऑल्सो लर्न इट इन आर्ट ऑफ लिविंग दैट कोई भी चीज़ को पहले वाई मत करो, पहले उसको एब्जॉर्ब करो, एक्सपीरियंस करो, उसके वाव फैक्टर को बाहर आने दो, आपको वाई के जवाब वैसे ही मिल जाएंगे. Come with So an I'm a open very mind. non-scientific person. Here are the medical doctors saying the same thing. Please try it. It's worth it. एक बार कोशिश करके तो देखिए, बहुत कमाल की दुनिया है. Once you experience it, you will realize the value of it. That's exactly what scientific people, medical people are saying now today. So Come with that an is- open mind. Yes, absolutely. Try it for yourself. जी. And then see whether it is working Working for or you not or not working. working. Bilkul. That is the basic. Absolutely. Absolutely. In medical science also, one of our professors always used to comment about this.
he said that there is no people usually do not give any worth to negative study, but the negative study is also important. If something doesn't work, that itself is a knowledge. Absolutely. So even if it doesn't work, try to do Try it. So because it is primum non nocere, so it's not doing any Maybe, harm. maybe you will be the inventor of why it did not work. Who knows? No, because keeping all this in mind, so now knowing the understanding of why prenatal conditioning is so important, equally important according to you people, and it is in your book also, is the physical well-being of the mother, right? So the practices adapted are yoga, nutrition, diet, whatever. Please tell us what exactly. See, as we know कि today's world is changing. Okay, so our lifestyles are changing. Most of the mothers are working, but they are working on, say, it's a sedentary Lifestyle. work job also if you're doing. Right. So we need some amount of physical fitness to keep ourselves fit in pregnancy, because that will reduce your physical problems in terms of, if I'm sitting for 6 hours on the chair, definitely I'm going to have backache. My legs are hanging. I'll have swelling also. I'm sitting like this. My bones will also pain. Our age for, say, pregnancy is also increasing. That is a very important thing. Earlier, the pregnancies used to happen by, say, 25, 29. It used to finish out. Now we start at the age of 27, 28, because the marriages are late. You need to settle in your careers and then, say, probably start thinking of babies. So all this is adding on to the physical problems which the mothers have in pregnancy now, which were not there before. हमारी नानी दादियाँ तो इतना काम करती थी कि उनको इस तरह का फिजिकल एक्टिविटी का जरूरत नहीं होता, उनको अलग से योगा या एक्सरसाइज करने का जरूरत नहीं होता। अभी हम क्योंकि सारा दिन बैठे रहते हैं, तो हमको एटलीस्ट कुछ टाइम तो चाहिए ताकि हम अपने लिए फिजिकल फिटनेस के लिए, एंड्योरेंस के लिए, स्ट्रेंथनिंग के लिए कुछ ऐसा कर पाए विच हेल्प्स अस टू सेल थ्रू दिस प्रेगनेंसी comfortably, so that we have less of physical problems. Otherwise, as your weight is increasing, your tummy is increasing, your posture is becoming like your back is at stress, so obviously you will have some amount of backache. So if we don't do anything to keep our back muscles strengthened, we will have backache. So that is the importance in today's scenario, that you do some amount of physical exercise, be it any form of, say, whatever the person likes. It could be yoga, it could be Pilates, it could be Zumba, it could be simple cardio, walking, anything, Zumba, anything, whatever they feel like that helps them to keep physically active. True. And then talking about your diet, definitely, see, as I told you, because of the increased age, problems are increasing. Diabetes, hypertension, thyroid problems are increasing. So lot of things comes through our diet. Pregnancy doesn't mean you can eat anything and everything during pregnancy. बड़े जैसे ही प्रेग्नेंट होते हैं, मैं तो हमेशा बोलती हूँ, हमारे इंडियन कल्चर में प्यार दिखाने का तरीका है खिलाओ खिलाओ जितना खिला सकते हो खिलाओ. बट everybody forgets about food for your mental health. Everybody is stressing on food for your physical health. बट और फिर आप इतना ज़्यादा खिलाते हैं कि एक तो वो उनका प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाती है. आपने इतना रसगुल्ला डे 1 से खिला दिया कि जिस टाइम रसगुल्ला की इम्पोर्टेंस थी ना, मे बी सेकेंड ट्रिमेस्टर और थर्ड ट्रिमेस्टर, दे आर ऑलरेडी बोर्ड ऑफ ईटिंग दैट रसगुल्ला. दे डोंट वांट टू ईट नाउ. सो उसको कम करने के लिए इम्पोर्टेंस ऑफ, वी नरेटेड एवरीथिंग इन दिस बुक, द इम्पोर्टेंस ऑफ, से, डाइट, what to eat, what not to eat, avoid, what is the requirement, medical requirement in that trimester, in each trimester. Like you can have problems of, say, anemia in second trimester. Calcium is very important in your, as the baby is growing. So all those kinds of things, where to get it as a vegetarian source and a non-vegetarian source. So everything we've tried to incorporate so that they don't have to struggle on and say, see ki what we need to consult. So it's a resource book for the trainers also, because systematically the exercises have been divided into the first trimester, second trimester, third trimester ways, because this is a very important point, as Smita is an expert over that. Choosing the right patient, because what happens most of the times, why medical people need to get into this and have to take charge of the situation, is
because if you do not have basic knowledge of the medical pregnancy, then probably what can happen is a wrong patient choice can at times put a patient in trouble. So being with that expertise, we are able to provide the right exercise to you. So every exercise cannot be done by every expecting mother. And if there is a probably a twins or a threatening or whatever is a bad obstetric history, then you have to be extra cautious. Which exercises can be offered, which cannot be offered. So all those things. So that part. So this is a resource book for the trainer also, for the yoga trainers. They can also take benefit of this. And so that because the physical activity part it doesn't mean that one just start going to a gym or start doing random physical activities. A lot of physical activities are trimester wise, they need to be done, because you need strengthening of the uterus at the initial trimesters, and then you need a relaxation of the pelvis in the later. बिल्कुल. Plus, if you can't do maybe the physical part, maybe not the asana or the posture, at least you can start meditating, you can chant, you can do breathings, pranayams. That will also help the mother in pregnancy, say, to sail with physical problems also. जी. Like, yeah, you're right. I was going to come to the mental and the emotional well-being of the person, because everything is so interrelated, right? Yes. If you're emotionally and mentally well balanced, automatically your physical needs somewhere are taken care of also, right? In fact, आपकी book में तो specific section है, right, on mental and emotional. Yes. How do you explain that? See, as I told you कि अभी कुछ नहीं कर पा रहा है, तो उसको भी तो कुछ वो ज़्यादा परेशान है जो जी. कुछ नहीं कर पा रहा है. If you are on bed, if you've been suggested bed rest because of some complication in pregnancy, there has been threatening, bleeding, bad obstetric history, there is a risk of preterm. Still, that mother is all the more stressed Yeah. because of her physical problems in constant pregnancy. 24 आवर डर रहता है कि कुछ होने चाहिए, pregnancy disrupt नहीं हो जाए, baby को जाम नहीं हो जाए. तो And तो और ज़्यादा every होता है. disease will have a psychosomatic origin basically. True. Pregnancy में नींद नहीं आ रही है, lack of sleep बहुत ज़्यादा है, आप stress हो रहे हो, तो अगर आप mental activities या relaxation activities करते हैं, so that helps you to calm down. Plus, as we said, that impacts your baby again. Absolutely. हैप्पी हार्मोन. Happy सो hormones. कौन सा हार्मोन कौन सी एक्टिविटी से रिलीज होता है, तो वो इवन सिंपल, और इस पे साइंटिफिक एविडेंस है आपस से कि सिंपल एक क्रेयॉन लेके आप अगर कलरिंग करने शुरू करते हैं, भगवान कृष्ण की तस्वीर है उसको आप कलर कर रहे हैं, तो वो इटसेल्फ आपका ब्लड प्रेशर को कम डाउन करता है, आपके नर्व्स को कम डाउन करता है, आपका स्ट्रेस को कम करता है. तो बड़ा सिंपल सा फिर जर्नलिंग Better करने लग sleep, जाए, हाँ. लेफ्ट हैंड से जर्नलिंग करने लग जाए, उल्टे हाथ से लिखना शुरू कर दे, अपने थॉट्स को, अपने ड्रीम्स को आप जर्नल करने लग जाए, मतलब उसमें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, सिंपल एक्टिविटीज़ है जी. वो आपको पता होनी चाहिए, पहले तो आप अवेयर होने चाहिए. हाँ, कि बिल्कुल. ये होनी चाहिए. उसकी इम्पोर्टेंस पहले तो पता होनी चाहिए, फिर वो एक्टिविटीज़ क्या हैं. So every activity will release a different kind of hormone. So there is something like कि dopamine को release करने के लिए आप क्या-क्या activities करें, ये दूसरे hormone serotonin को release करने के लिए क्या-क्या activities करें. So we've tried to mention it everything in the book and then give an activity related to that base. Amazing. Yeah. It's so holistic, like basically देखा जाए तो. And then, you know, when it is medically and scientifically validated, obviously उसकी importance तो बढ़ी जाती है, no doubt about it. And find again the spiritual connection. You know, the physical health, then your mental and emotional health finally brings you to your spiritual connection, right? So, and it influences your fetal development, the brain development. मैंने पहले भी कहा ना, स्पिरिचुअल तो एक्चुअली वो तो पूरा बेसिस है. क्योंकि अगर एक बड़ा सिंपल सा आपको एग्जांपल इसका देता हूँ कि हम लोग जब EQ पढ़ते थे तो हमें पढ़ाया गया कि प्रीवियसली आज के 15-20 साल पहले तक IQ पे हम लोग खूब पढ़ा करते थे. IQ कब है, इसका IQ ज़्यादा है, आइंस्टीन की IQ कितनी थी, इसकी IQ कब है. तो IQ was basically related to brain's calculative mathematical ability, scientific ability. ये IQ है. Then came the concept of EQ, वही latest is EQ. तो EQ में इमोशनल, आप कितना अच्छा इमोशनल हैंडलिंग अपना कर रहे थे, इमोशंस को अपने समझते, दूसरे के इमोशंस को समझते ही नहीं समझते, किस तरह से आप उस पोजीशन में आप अपने इमोशंस पे हैंडल करते हैं. So then, but now the latest concept is SQ. So I was talking to one of the, that is a spiritual question. Okay. One of the स्वामी जी तो उन्होंने बहुत अच्छी हुई बात कही. उन्होंने कहा डॉक्टर साहब सिंपल एग्जाम्पल दूँ तो मान लीजिए एक दीवार है, उस पर आपको चढ़ना है, तो IQ ये बताती है कि मुझे कितनी ऊंची सीढ़ी चाहिए.
कि भाई ये दीवार 7 फीट की है तो मुझे 7 फीट की सीढ़ी चाहिए, कम से कम 6 फीट की सीढ़ी उस पर चढ़ने के लिए। फिर वो सीढ़ी कितनी स्ट्रांग हो, उसमें कितने रंग हो, कितने दूर दूर हो कि मैं उसमें चढ़ सकूँ। तो ये IQ है जो बताएगी कि आप अगर 3 तरह की सीढ़ी पड़ी तो आप वो वाली सीढ़ी लाओगे जो उस दीवार को चढ़ने में मदद कर सके। दिस इज IQ। फिर उन्होंने कहा EQ ये है कि आपके अंदर डर है, सीढ़ी में चढ़ पाऊंगा नहीं चढ़ पाऊंगा, तो आप अपने आप को मोटिवेट कर रहे हो कि नहीं मैं चढ़ लूँगा, मैं चढ़ सकता हूँ, तो अपने आप से पॉजिटिव टॉक कर रहे हो। फिर आप हेल्प सीख कर रहे हो किसी से, किसी को आप कोई चढ़ रहा है तो उसको एम्पथाइज कर रहे हो, नहीं चढ़ रहा है चिंता मत कर। सो दिस इज ऑल EQ। तो इज इट बस SQ इज कि आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे सीढ़ी चढ़नी क्यों है, सिर्फ इसलिए ये सब चढ़ रहा है, इसलिए मुझे सीढ़ी चढ़नी है। सो SQ तो उसका क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चंस है। SQ वो प्रश्न है जो आपके बाकी सभी प्रश्नों की वैलिडिटी को क्वेश्चन करता है। बिल्कुल। Is it valid? So the context, entire context changes when spiritual context come into picture. Another story which goes around it कि एक मंदिर के पास 3 आदमी पत्थर तोड़ रहे थे, तो किसी ने पूछा आप क्या कर रहे हैं, तो एक ने कहा आप क्या करेंगे, पत्थर तोड़ने का काम मिला, पत्थर तोड़ रहे। दूसरे ने पूछा आप क्या कर रहे हैं, उसने कहा मैं आप कुछ नक्काशी कर रहा हूँ, कुछ बना रहा हूँ एक चीज़। तीसरे से पूछा तो उसकी तो आंखों में चमक थी और वो खड़ा हो गया और बोले आपको नहीं पता इतना सुंदर मंदिर यहाँ बनने जा रहा है, मेरा गढ़ा हुआ पत्थर उस मंदिर में लगेगा, इतना अच्छा मंदिर होगा, लोग दूर दूर से देखने आएंगे, उस मंदिर में मेरा गढ़ा हुआ पत्थर लगेगा। वो आदमी की अलग ही चमक थी, उसकी आंख में, उसके चेहरे पे तेज था। सो तीनों एक ही काम कर रहे हैं, तीनों पत्थर तोड़ रहे हैं, लेकिन कंटेक्स्ट अलग है। तो ये जब हम समझ ले कि मदरहुड में कंटेक्स्ट आपका बदल जाए, it is not that you are giving birth to another child, everybody else is doing that, but you say that I am trying to create an environment for a holy soul to take birth. The moment context आपका बदल जाएगा, आपका अपने आप कंटेंट बदल जाएगा, क्योंकि कंटेंट बदलते रहेंगे तो उससे कंटेक्स्ट नहीं बदलेंगे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। सो that is why spirituality has to come in. वही धर्म देता है इनको उत्तर उसका। बेस वही है। मोस्ट ब्यूटिफुली पुट, सिंपली एंड सो वेल पुट कि आई थिंक आज सुनने वालों को बहुत आसानी से ये समझ आ गया होगा कि वाई द स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट इज सो इम्पोर्टेंट। लाइक यू ब्यूटिफुली सेड, लाइक यू नो, आप अगर अपना कॉन्टेक्स्ट बदल लें तो आपका कंटेंट बदल जाएगा, एंड अगर आप अपना कंटेंट बदल लें तो आपका कॉन्टेक्स्ट बदल जाएगा। आई थिंक इट्स अ ह्यूज फॉर्मूला, इट इज़ द ह्यूज फॉर्मूला फॉर अ न्यू मदरहुड, एब्सोल्युटली। लाइक सो आपने जैसे ये इम्पोर्टेंट समझाई स्पिरिचुअल कनेक्शन की प्रेगनेंसी जर्नी में, विच यू पुट इट सो सिंपली एंड सो ब्यूटिफुली। सो इसके लिए जो टेक्निक्स हैं, जो टूल्स हैं, एज वी में से, what would you have to say about that? जैसे mantras हैं, music है, what are the tools and techniques which you basically propagate in your book and you feel that they are important, and how? So broadly पहली बात तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि most of the parents come with a query कि मतलब since we are pregnant तो क्या करें, तो कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए पहली बात से, बिल्कुल। क्या ना करें पहले पता होना चाहिए क्या नहीं करना है। सो एमलेसली रील्स नहीं देखने नेचुरली, क्योंकि वो नुकसान ही करती है, जब आपकी अटेंशन होल्डिंग स्पैन कम हो जाती है। कुछ ना कुछ पढ़ना जरूर चाहिए, जो लिस्ट ऑफ बुक्स हमने बता रखी है। क्यों पढ़ना चाहिए कि ये भी स्टडीज़ हैं जो ये बताती है कि जब आप कोई चीज़ को पढ़ते हैं तो हमारे ब्रेन में एक समथिंग कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी होती है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी तभी डेवलप हो सकती है ब्रेन की जब आप किसी चीज़ पे अटेंशन को लैच ऑन करके रखें। Okay. अगर आप किसी बात को सिर्फ 50 सेकंड के लिए देख रहे हैं, फिर दूसरी बात वापस से 50 सेकंड के लिए देख रहे हैं, तीसरी बात 50 सेकंड देंगे, तो आपका ब्रेन का प्रोसेसिंग टाइम जो है बहुत कम हो जाता है। हम जो बात कर रहे थे कि बच्चों को जी। सिखाना है और बच्चे रील्स इस तरह से स्क्रॉल करके देखते हैं तो क्या उनका उसका- अटेंशन स्पैन कहाँ, तो मदर का ही अटेंशन स्पैन नहीं है तो बच्चे का कैसे डेवलप इसमें स्टडी आ चुकी है Span. कि ये इससे डिप्रेशन भी होता है, इससे स्ट्रेस भी क्रिएट होता है, क्योंकि क्या है कि आप मल्टीपल चीज़ों को एक साथ देख रहे हो लेकिन ब्रेन कुछ कंस्ट्रक्टिव चीज़ तो पकड़ नहीं रहा है। तो मान लीजिए आप बहुत सिंपल एग्जांपल आपको दो, आप एक किताब नॉवल खुल के बैठे हैं, कोई कहानी पढ़ रहे हैं, आनंद मठ है, तो आप आनंद मठ पढ़ रहे हैं, तो आप जब पढ़ेंगे तो आप कंटेक्स्ट क्रिएट हो रहा है स्टोरी में, स्टोरी के अंदर डेप्थ में जा रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, तो आप उसको फिर विजुलाइज करना शुरू करते हो। जी। जब आप विजुलाइज करते हो तो विजुलाइजेशन आपके ब्रेन के अंदर इंप्रेशंस क्रिएट करता है। वो इंप्रेशन नेचुरली भी दिख जाते हैं
कहते हैं कि नेपोलियन की मदर जो थी वो वॉर स्टोरीज पढ़ा करती थी. सो ऑल सच थिंग्स जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं वो ऐसी वाली एक्टिविटी करें जो लॉन्ग टाइम तक अटेंशन को होल्ड कर. इसीलिए see, we could have made an app also of this book, but we thought we will have a book so that they have something off the screen first thing पहले तो to do, screen- कि everything if you do it on screen again and then it will not have that impact. तो memory आपको नहीं रहेगी, वो time आप उतना नहीं spend करेंगे. अगर दो partners हैं और दोनों अलग अलग apps पे कर रहे हैं तो वो उनका जो me time है वो फिर अलग अलग हो जाएगा. So in this book at least sit together, bond together and then bond as a trio. That's the basic जी. और फिर aim रेडिएशन of the और book. उससे भी बचाव होता है. एक तरफ से हम Exactly. कहते हैं मोबाइल छुड़ाए, तो ये मान लीजिए मोबाइल छुड़ाने का ही तरीका है कि आप मोबाइल से आप दूर रहो, कुछ किताब करना पकड़ो. शुरू करेंगे तो वही एक्टिविटी probably baby will also pick up Right. that So, हम सब habit of चाहते हैं कि reading. बच्चा रीड करे. सब ज्यादातर पेरेंट्स आते कहते हैं बच्चा पढ़ता नहीं है, पढ़ने का, क्योंकि आपने उससे आप स्वयं नहीं पढ़े ना, तो आप पढ़ें. आप पढ़ेंगे प्रेगनेंसी में, देखिए बच्चे को कितना अच्छा पढ़ने का शौक होगा, बच्चा पढ़ेगा आराम से. सो ये तो एक तो कुछ करें जैसा मैंने कहा, और कुछ अच्छा करें, और तीसरा है कि रैंडम स्क्रॉलिंग जिसको कहते हैं, मतलब टीवी पे भी तो रैंडम चीज़ें ना देखें. और हम तो जानते हैं आजकल तो वेब कंटेंट आ गया, तो वेब कंटेंट तो इतना ज़्यादा OTT कंटेंट इतना ज़्यादा वायलेंस है उसके अंदर, इतना अधिक वायलेंस है, वो सब की नीड नहीं है. एटलीस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं है. तो मैं उनसे कहता हूँ कि तुम कितने भी बड़े इंसान हो, तुम कितना भी ज़्यादा करंट अनलेसली तुम UPSC का एग्जाम दे रहे हो तो बात अलग है, अदरवाइज करंट अफेयर्स को छोड़. ये हाँ, संसार बिल्कुल, वहाँ ऐसा पे ही सिवाय था. वायलेंस के कुछ हाँ, दिखा नहीं ऐसा ही रहा था, है. ऐसा ही रहने वाला जी. है. इसके बजाय तो तुम बालकृष्ण की लीलाएं पढ़ दो, इसके बजाय तो तुम टॉम एंड जेरी देख लो, वो तुम्हारे ज्यादा फायदा करेगा. इतने अच्छे अच्छे Debate. बच्चों के एनिमेशन बने हुए हैं, बाल गणेशा, बाल हनुमान, वो देखो आप, लीलाएं भगवान राम की देखो, मानस देखो आप, बहुत कुछ है. इतनी अच्छी कथाएं आती हैं, इतनी अच्छे बोलने वाले हमारे यहाँ पे धर्म के वक्ता हैं, उनको Plus सुने. importance, like जहाँ हम बात करें importance of chant क्या है, so उस पे I think डॉक्टर तुषार के फोकस. हाँ, तो चैंटिंग पे क्या है कि वेस्टर्न रिसर्चेस भी हुई, और चैंट में क्या होता है कि 3 चीज़ें होती है चैंटिंग में. 3 तरह से जब किया जाता है, मानसिक, वाचिक, उपांशु. सो वन इज वेर यू चैंट ओनली इन द माइंड. मोस्ट पीपल डू दैट. सो व्हाइल दे आर जस्ट कीप चैंटिंग द नेम इन द माइंड. देन उपांशु में होठ हिलते हैं लेकिन आवाज़ नहीं आती है. एंड तीसरा वाचिक होता है, इसमें आप राम 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 बोलते हैं. तो सबसे अच्छा जब जो होता है वो मानसिक माना जाता है, जो हर जगह हर समय हर तरह से किया जा सकता है. तो उसमें क्या होता है, मैंने बताया था, कामिंग और सूदिंग इफेक्ट ऑन द नर्व्स होता है उसका. फिर वो बच्चे के ऊपर भी इंप्रेशन क्रिएट कर देता है. सो बच्चा, मैंने जैसे बताया कि वो फिर बच्चा उन चीज़ों को, उन एक्टिविटीज़ को, सीडिंग हो गई उसकी, तो उनको ढूंढ पाता है और उनकी तरफ उसकी रुचि डेवलप हो जाती है. तो एक चीज़ चैंटिंग हो गई. फिर लिसनिंग टू, तो मैं सब मदर से कहता हूँ, द मोमेंट यू वेक अप इन द मॉर्निंग, फर्स्ट थिंग इज everybody has that Bluetooth speakers and all. जी. जी. Put your favorite mantra or श्रोतम और आरती Chant. और चैंट, whatever you want to your, जो आप सुबह सुबह उठते हैं उसको नियम से बना लो. नियम बना लो. मान लो गायत्री, मान लीजिए बाबा शिव, मान लीजिए श्री राम नमः, जो भी मंत्र आपका इष्ट का मंत्र है, जो आप अपने घर में करते हैं, जो आपको संतुष्टि देता है, आपको मन में एक तरह की स्ट्रेंथ देता है, वो आप प्ले कर डेली एज अ रूल. 30-40 मिनट तक आप उसको चलने ही दें, इन तक आप सुबह के साथ. ये सबकॉन्शियस सीडिंग इससे बच्चे की होती है. तो इसमें आप ट्रैवल कर रहे हैं कार में, यू गोइंग टू योर वर्क प्लेस, you can play it in your car, Bluetooth लगा के. So it is more like it is not time consuming, plus आपको कुछ extra effort नहीं करना पड़ रहा वो करने के लिए. rather than watching silly videos which is not making any sense. और दूसरा इस पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो पता होनी चाहिए लोगों को, क्योंकि जो प्रेगनेंसी और गर्भावस्था की जा रहे हैं, nowadays we all understand there is something called as negative impact. Negative impact हर तरह का होता है. बिल्कुल. कोई आदमी मुझे घूर के भी देखे तो मेरे पर नेगेटिव इम्पैक्ट होने वाला है. कोई मेरी तरफ फ्राउन करके देखे या मुझे क्रोध से देखे तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट है. मेरे मन में तो भावना आएगी ना, वो ऐसा क्यों कर रहा है, मेरे अंदर तो गुस्सा इकट्ठा हो जाएगा उसे सिर्फ देखते हुए. तो वो कारण से इस तरह का कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट है, होल रेंज ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट्स, उनसे बचने के लिए हर मदर को कोई ना कोई स्रोत किसी न किसी फॉर्म में हमेशा अपने साथ रखना चाहिए. स्रोत मतलब भले वो हनुमान चालीसा हो, भले वो राम चैंटिंग, कुछ भी. मैं आपको बता रहा हूँ, इस कलयुग के अंदर तो हनुमान चालीसा से ज़्यादा पावरफुल कोई चीज़ ही नहीं है, क्योंकि हनुमान चालीसा के अंदर खूब सारे मिस्टिक उसके ताकत है. मैं तो खुद एक्सपीरियंस किए हुए इसलिए बता रहा हूँ आपको. तो वो तो कवच है. आपने इसको इंग्लिश में ऐसे नहीं कहा गया, हमारे शास्त्रों में सबको कवच कहा गया. कवच का अर्थ होता है आर्मर.
तो कोई आदमी वॉर में जाता था लड़ने तो वो आर्मर पहन के जाता था, तो आपके जो उसके वाइटल पॉइंट्स होते थे उनको कोई तीर कमान तलवार से कटते नहीं थे वो। बिल्कुल। तो उसी प्रकार से ये कवच आपकी स्पिरिचुअल बॉडी के लिए एक तरह का आर्मर है, तो उसको कोई हार्म नहीं पहुंचा सकता। और जो जैसा मैंने बताया स्पिरिचुअल बॉडी तो कोर है, उसमें हार्म पहुंचेगा तो आपकी मेंटल इमोशनल बॉडी पे हार्म पहुंचता है, उससे फिर आपकी बॉडी इसमें आपकी फिजिकल बॉडी पे हार्म पहुंचता है। जैसा बोलते हैं ना, आज मन खराब है, आज अच्छा नहीं लगा, आप सड़क पे निकले जी। और एक जानवर मरा हुआ आपको दिख जाए, या मान लीजिए पुराना मरा हुआ है, उसकी स्मेल हो रखी है, तो आपका मूड ऑफ हो जाएगा। आप कहेंगे सुबह सुबह निकलते हुए क्या देख क्या जी, गया। जी। तो वो बिकॉज इट इज गिवन एन इम्पैक्ट ऑन योर ब्रेन, सो वो इम्पैक्ट को हम लोग अंडू करने का तरीका ये है, किसी भी तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट से आपको पड़ता है तो यू मस्ट हैव अ चैंट, यू मस्ट हैव अ मंत्रा, मस्ट हैव अ स्रोतम व्हिच इज ऑलवेज विथ यू थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। मैं आपको मार्क माय वर्ड्स, व्हेन यू एंटर द लेबर रूम, व्हेन यू डिलीवर अ बेबी, वी हैव मदर्स, आई हैव ट्राइड इट पर्सनली अबाउट in deep pain, I have tried it during those dental extractions and all. Your chant, your mantra in all such adverse situations आपको ब्रेन को उससे एक तरह से डिटैच कर देता है। तो आपकी बॉडी का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ही कॉपरेट करता है। आप उसमें दुख तकलीफ जो सफरिंग होती है ना, तो पेन ऑप्शनल नहीं है लेकिन सफरिंग ऑप्शनल है, तो सफरिंग को हटा देता है, काट देता है उससे। सो जो बर्थिंग का पेन है, फियर है, वो काफ़ी हद तक चला जाता है। तो ये और ये बहुत सपोर्टिव है, ये चीज़ बहुत सपोर्टिव है। Most of the mothers say कि when they are birthing probably they have something going on in their mind. They can chant the same thing, anything which you believe on, which is your holding point. तो अगर आप वो chant करना शुरू कर देते हो That's तो true. automatically the power comes. So it's more like कि a mother who is giving birth is no less than a goddess, बिल्कुल। because you're bringing a life into this world. So that is the work of a god. So you are now right at that time you are being a goddess. तो आप जो चीज़ यूनिवर्स आपको पावर देता है, ये आपको पावर देता है कि यू कैन ब्रिंग दैट लाइफ इनटू दिस मैं आपको एक रियल लाइफ इंस्टेंस सुनाता हूँ। वही इनिशियली शायद फर्स्ट या सेकंड क्लाइंट थी, so it's 18 years back now, तो वो गायत्री करती थी, तो उन्होंने आगे हमें खुद बताया था। तो मैंने कहा ना, हम लोग हमारे जी। मदर से ही सीखते हैं। तो वो उन्होंने आके बताया कि डॉक्टर साहब मैं गायत्री मंत्र करती थी, तो मेरा बेटा अब तो बड़ा हो गया, 3-4 साल का है, वो कहीं काम करती थी, काम करने जाती थी, तो कहती अभी अपने नाना नानी के साथ रहता है। तो बोले वो तो एजेड है, तो अब ये तो बदमाश है, इधर खेलना उधर खेलना, भागना दौड़ना पूरे दिन, इसको संभालना मुश्किल होता है। तो बोले सुबह इसको पकड़ के नहलाना, इसके कपड़े चेंज कराना, नाश्ता कराना, ये इतना भारी काम मेरी मदर के लिए हो जाता है, और ये पकड़ में नहीं आता उनके, सारे टाइम तो खेलता रहता है। कहती लेकिन एक स्ट्रेंज बात है कि द मोमेंट आज के बगल में हमारे मंदिर बना हुआ है, मंदिर से गायत्री मंत्र बजता है, तो ये मंदिर से गायत्री मंत्र के बजते ही इसको पता नहीं क्या होता है कि ये भाग के जाकर के खिड़की के पास खड़ा हो जाता है, उसकी दोनों ऐसे पकड़ लेता है जो रॉड्स हैं, और उधर देखता रहता है। बोले वो टाइम पे आप इसके कपड़े चेंज करा दो, इसको आप खिला दो, यूँ मेस्मराइज जैसे उससे, मतलब बस उस खिड़की से चिपक गया, उसको ऐसे देखता रहता है, उधर देखता रहता है। तो मैंने कहा वो तो बोला नॉर्मल बात है, क्योंकि वो हिप्नोटिक ट्रांस है, उसके लिए इंड्यूस हो जाता है उसका ट्रांस हर बार। वो कहती है ये जरूर बात है, इसी धुन में मैंने गायत्री मंत्र सुना था जब मैं प्रेग्नेंट थी। तो अब जो मैंने आपसे कहा कि वो इससे सबसे अच्छी बात इन सब चीज़ों की ये है कि इनसे कोई नुकसान नहीं है आपका। और अगर आप हिप्नोटिक ट्रांस को कर लें, एक्सपीरियंस एक बार कर लें, और उसको इसको अटैचमेंट कहते हैं, वो हिप्नोसिस में यूज़ किया जाता है कि इसको अटैच आप किसी चीज़ से कर सकते हैं, ट्रिगर भी कहते हैं इसको। वो ट्रिगर कर दिया आपने, अटैच कर दिया, तो एक बार ट्रिगर और अटैचमेंट अगर हो गया किसी चीज़ के साथ में, तो उसके लिए बेनिफिशियल है। इसका दूसरा एग्जाम्पल, लाइक हम बहुत सारे चैंट, लाइक ओम चैंट हम हमेशा करते हैं क्लास में भी। All the mothers will chant Om Ji every time. So they practice it for 9 months. Now whenever the baby is crying, the baby is not coming on the breast, and they start chanting the same thing, and then they see, okay, the baby becomes calm so easily, they will start feeding. So I always tell them, तुम जो pregnancy में करती थी वही सेम चीज़ अब वो environment वापस बाहर create करो, ताकि the baby will be psychologically not stressed out and will start feeding well or say whatever. प्रोफेसर है, उन्होंने बताई थी ये बात कि वो जब ऑपरेट हुए थे, तो कहते हैं ऑपरेट होने के बाद में उनको कोई इन्फेक्शन हो गया, तो they needed some tranquilizers and analgesic, और उनका इन्फेक्ट हो गया वुंड, एंड ही वाज इन पेन, डीप पेन, और रात को पेन ज़्यादा होता था, परेशान बहुत होते थे।
तो कहते हैं बड़ी स्ट्रेंज बात ये रही कि बोले मदर उनकी जो है एजेड थी काफ़ी, कहते मदर पास के रूम में बैठ के कोई भजन गाती थी। कहती वो भजन गाती तो मेरे को इतना अच्छा लगा कि मैं सो गया, मेरे को दर्द नहीं हुआ। ऐसा 2 दिन तक लगातार हुआ। तो बोला जो इंजेक्शन लगाने का पाउडर आया था उसको मैंने कहा कि भाई तुम बताओ वो माता जी ये भजन गाती है, अगर उसके बाद दर्द हुआ तो वो बना लूँगा। तो बोले फिर उस पर मेरे को इंजेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ी, मैं वो माता जी को कहता आप भजन गाओ, वो गाने लगती मैं सो जाता। तो ये मैंने उनसे एक दिन पूछा आप भजन कौन सा गाती होगी, क्या भजन है? उन्होंने बोले मुझे नहीं पता था। तो बोली वो माँ बोली कि जब तू पेट में था तो मैं भजन बहुत गाता थी। So आप सोचिए and this is coming from someone who's like now, 70 years, now right he's 90, now. now he's 90s, now he's 90s. So बात ये है कि इम्प्रेशन संस्कार जिसकी हम बात कर रहे हैं भाई बड़ा सिंपल भाषा में, कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि आप साधारण भाषा में बताएं। तो पुराने टाइम में रिकॉर्ड प्लेयर होता था, मैं थोड़ा फॉन्ड ऑफ तो रिकॉर्ड्स पे इम्प्रेशन होते हैं ना, तो इम्प्रेशन को लिटिल रीड कर लेती है। तो उसी प्रकार से हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन पे हर एक्टिविटी का रिकॉर्ड होता है। तो जो भी आप कर्म कर रहे हैं, जो भी जिस भी तरह का, वो कर्म के 2 अंश बन जाते हैं, एक फल अंश होता है, एक संस्कार अंश होता है। फल अंश हो उसका फल मिल जाएगा। तो मान लीजिए मैं जोर से बोल रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, तो सामने वाला व्यक्ति वापस मेरे ऊपर चिल्लाएगा, तो ये उसका फल है, फल अंश। संस्कार क्या है कि मैं अगर जोर से बोल रहा हूँ तो मेरे मन में चिल्लाने का संस्कार पड़ रहा है। मगर इस तरह से हर चीज़ का, मान लीजिए मैं बांसुरी बजा रहा हूँ तो बांसुरी बजाने का मेरे मन में संस्कार पड़ रहा है। अब वो बांसुरी मेरे लिए फेमिलियर हो गई, वो मेरे लिए एक प्लेजेंट उसने संस्कार बना दिया। नेक्स्ट टाइम अगर मैं बांसुरी सुनूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा। नेक्स्ट टाइम मुझे अगर बांसुरी दी जाएगी तो हो सकता है मैं उसे लेकर के बजाने की कोशिश करूँ। इसको संस्कार कहते हैं। और जो साइंस है वो भी रिवील करता है कि बियॉन्ड लाइफ भी कॉन्शियसनेस कंटेन करती है इन संस्कारों को। तो एज अ पेरेंट कई बार लोग पूछते क्या करें, तो बस इतना सा ध्यान रखें कि जो भी आप कर रहे हैं उसका बच्चे पे संस्कार पड़ रहा है। तो ये ध्यान रखें बात कि को आप बहुत किस चीज का माइंडफुल संस्कार- रहे इस बात के लिए कि Mindful. So it आप- can be mindful eating, mindful watching, mindful moving around, hanging around. Everything should be Has a mindful. mindful, yeah. Because you are, the baby is utilizing your sense organs to grab in everything. जी तो जो आप देख रहे हैं वो देख रहा है, जो आप सुन रहे हैं वो सुन रहा है, जो आप खा रहे हैं वो टेस्ट कर रहे हैं, जो आप फील कर रहे हैं वो फील कर रहे हैं। लाइक जैन मास्टर की स्टोरी सुन रहा था, तो इसमें जैन मास्टर के पास जाके किसी व्यक्ति ने कहा उनको शायद कोई पर्टिकुलर तरह का स्मोक करने की आदत थी, तो उन्होंने कहा मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ, मैं खुद ट्राई कर चुका हूँ और इसको मैं छोड़ नहीं पाता हूँ। 100 तरह की चीज़ें मैंने ट्राई कर ली और देयर इज़ नो वे कि मैं इसको छोड़। तो उन्होंने कहा कि तो क्यों छोड़ रहा है, तो मत छोड़। बोला नहीं, मैं मुझे पता है चीज़ गलत है, मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा पहली बात तो अब छोड़ने की तुम कोशिश मत करना। तो उन्होंने कहा फिर, बोले बस अवेयर हो जाओ। अवेयर हो जाओ तो अवेयर किस चीज़ को होना कि बोले बस तुम एक चीज़ देखना कि जैसे तुम मान लो सिगरेट पीते हो तो बस छोड़ना था, तुम्हें देखना कि बस ये देखना कि मैं सिगरेट पी रहा हूँ, बस अपने आप में देखना कि मैं कर रहा हूँ। ये बस ये देखना तुम माचिस उठाओ, मैं माचिस दे रहा हूँ। ये नोट करना कि मैं सिगरेट जला रहा हूँ, मैं सिगरेट का कष्ट है, बस अवेयर रहना। इसमें इससे क्या हुआ, उसके अवेयर रहना। वो व्यक्ति 24 घंटे में आ गए, बोला साहब अब मैं सिगरेट नहीं पी सकता। जी बोला क्यों? क्यों? बोला मैं अवेयर हो गया, हाँ और अवेयर होने के बाद मैं नहीं कर सकता। तो अगर पेरेंट की रीति में बात कह रहा था कि हम गर्भ संस्कार में सारा ओनस डालते हैं कि माँ को या बच्चे को, माँ को बच्चे के लिए क्या करना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज अ गॉड गिवन पीरियड टू यू। ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक ऐसा काल है, ऐसा समय है जिसमें आप भी अपने जीवन को आमूल-चूल बदल सकते हैं। बिल्कुल अगर आप आध्यात्मिक रूप से जागृत होना चाहते हैं तो ये वो समय है। अगर आप कोई अच्छी हैबिट पिक करना चाहते हैं तो ये वो समय है, क्योंकि ये समय आपको हमेशा के लिए बदल के रख देगा। So it's not only for the betterment of the child, it's for your betterment also. So utilize this window for your betterment. child will automatically get Yes, better. exactly. Actually, this is what it is. Yeah, you yeah. know? Yes. So up, if you want to draw this time. If you want to paint this time. If you want to write a poetry this time. If you want to learn music this And time. tell you, Abhi, when we did the launch for this book, we did all the activities with the couples. Okay, so there was one couple who came to me and said they were coloring very nicely, both of them sitting together and coloring together on 2 different pages. So the mother came and asked me, मैम मेरे हस्बैंड एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि तुम तो ये कर रही हो ड्राइंग, चलो तुम्हें ये समझाया कि
तुम्हारे इमोशंस पास हो रहे हैं, तुम्हारे ये पास होके बच्चे पे इम्पैक्ट करेंगे। मैं जो ये कर रहा हूँ इसका मुझे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, या मेरा इससे बच्चे का क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो वो मदर कहती है, मैंने इनको ये जवाब दिया आज, शी वॉज ऑलरेडी इन 9th month, शी सेड 9th month है, दिस इज 1.5 hour which both of us have sat together Right. and done something together। कि ये पहली बार है कि 9 महीने में हम दोनों ने कोई चीज़ साथ में बैठ के करी है। तो जो जी। चीज़ का इम्पैक्ट what you are passing to me is also passing to the Passing to the baby। baby. Absolutely. Yeah, so Yeah. it's like complete everything So उसको that यूटिलाइज इस तरह से करेंगी वो म्यूचुअल, मतलब उसको। और एक तो मैं सबसे ये कहता हूँ, क्या होता है हमारे पास कुछ मदर्स इतनी सेंसिटिव होती है कि सब ओवरवेलम हो जाती है। ओवरवेलम होती है, उनको लगता है अरे हम ये नहीं कर रहे तो कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ कम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, दोनों बातें हैं कि ये वो समय है जब आप चूंकि ऑलरेडी इमोशनली सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव है, charge। तो इसलिए थोड़ा चार्ज अप है। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें कि आपको कहीं भी एक तो किसी से कम्पीट, जैसे मैंने बताया, ना आसन में ना किसी और एक्टिविटी कम्पीट नहीं करना है। हाँ, पार्टिसिपेट करो, कुछ अच्छी एक्टिविटी करो। कुल मिला के ये मान के चलो कि आपके घर में अगर कोई बच्चा है तो आप उसे कैसे राजी रखोगे। ऐसे वो जो पेट में बच्चा है उसको राजी रखो, उसको सही गलत बात बात तो नहीं है। करोगे, उसके सामने गाली तो नहीं दोगे, उसके सामने कोई गलत चीज़ तो नहीं करोगे। तो आप इतनी समझ तो हर व्यक्ति के अंदर है। तो उस प्रकार से वो सब चीज़ करो जो आप चाहते हो कि बच्चा ऑब्जर्व करे, सीखे, उसको रिक्रिएट करे। और वो सब चीज़ मत करो जिनसे आपको ये डर लगता है कि वो बच्चे को अपने नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगे। सिंपल वे, आप वो हर चीज़ करो जो आप चाहते हैं आपका बच्चा करे। राइट। So you want to design a baby, Yeah, be this that is the baby. right time। Yes, Be that person. start doing first. those activities which you want। Yeah. हम बाद में कि ये हॉबी कल्टिवेट कर ले, ये Yeah. कर ले, वो टाइम नहीं है। टाइम देखिए, कौन कहता है कि प्रताप रिबॉर्न नहीं हो सकते या शिवाजी रिबॉर्न नहीं हो सकते, बिल्कुल। ऐसा और रिबॉर्न नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। राधा, मैं तो अभी कहता हूँ कि तो नीड ऑफ द आवर है, तो वो तो बिल्कुल होने चाहिए। क्या हम में वो वापस क्वालिटीज, वो वीरता, वो साहस, वो बिल्कुल। विजन, वो दृष्टि, हमको वो लोग फिर से चाहिए। तो अगर हमको रिक्रिएट करना है, अगर हमको वापस से हमारे गौरव को पुनः प्राप्त करना है, तो उसके लिए वो तभी रिबॉर्न होंगे जब मदर्स के अंदर ये बात होगी। इसलिए मैं उनसे कहता हूँ, कहानी नहीं वही पढ़े, आप कहानी शंकराचार्य की पढ़े, आप कहानी गौतम बुद्ध की पढ़े, आप कहानियाँ वो पढ़े, आप चाणक्य को पढ़े, आप चंद्रगुप्त को पढ़े, आप इतनी अच्छी मेवाड़ के महाराणाओं की कहानियाँ है, वीर दुर्गादास की कहानी है। पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अनंत कहानियाँ ऐसी है जो हमारे लोकल लीडर्स थे और जो कुछ बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए लोग हुए, और उनकी माओ ने, और उनको किस तरह से कैसे अच्छे लोग हुए, तो उनकी कहानी अगर हम पढ़े, तो संत ज्ञानेश्वर हुए, एकनाथ हुए, तो वो कहानियाँ हैं पढ़ने के लिए। छोड़ दो वेब सीरीज, कोई आपको कुछ इसका कुछ सिखाएगी। हाँ नहीं होगा। हाँ, आप क्लासिकल म्यूजिक सुनते हैं, उस पर भजन सुनते हैं, वो बहुत अच्छा है, उसमें उसके लिए बनाएंगे, लेकिन ऐसी फ्रेम ऑफ माइंड में रहे जिससे आप कुछ पिक कर रहे हैं। म्यूजिक का तो बहुत हाँ, इम्पोर्टेंस है। एग्जैक्टली। बिल्कुल। क्योंकि इंस्टिंक्ट, एक्चुअली बहुत कम लोगों को इंस्टिंक्ट के बारे में कॉन्सेप्ट है। इंस्टिंक्ट वो होता है जैसे नेवले का इंस्टिंक्ट है। नेवला सांप से डरता नहीं, ये उसका इंस्टिंक्ट है, उसको कोई डर नहीं लगता। बाकी सब जानवर एक बार सांप से सहम जाते हैं, नेवला उसके ऊपर, उसको पता है मुझे कैसे इसको कैप्चर करना है, इसको इंस्टिंक्ट कहते हैं। वो इंस्टिंक्ट इस समय डेवलप हो रहा है। इंस्टिंक्ट राइट डेवलप कर दोगे तो वो इंस्टिंक्ट उसका हिस्सा बन जाएगा, उसके कैरेक्टर का हिस्सा बन जाएगा, उसके चरित्र का हिस्सा बन जाएगा। इंस्टिंक्ट टैलेंट डेवलप कर दोगे तो एक बड़ी अच्छी कहानी मैंने सुनी थी, उसमें था कि वो एक राजकुमार को एक राजकुमारी से प्रेम हो गया। तो चूंकि वो शत्रुघ्न राजा की बेटी थी तो उसको सामने शादी करके ले जा नहीं सकता था, तो दोनों में निर्णय हुआ कि हम इससे भाग के चलते अपने राज्य में ले जाकर शादी करेंगे। राजकुमार का एक मित्र भी था साथ में, तो राजकुमार ने उससे कहा कि तुम एक अच्छे घोड़े की व्यवस्था कर दो जिस घोड़े में मैं इसको रात को ये कि भाग सकूँ। तो एक ठीक नियत स्थान पे वो राजकुमारी आ जाएंगी और वहाँ से हमें लेके अपने राज्य में चले जाएंगे। तो राजकुमार का मित्र एक घुड़सवार, वो जो घोड़े बेचने वाला था, उसके यहाँ गया, उससे कहा ऐसा घोड़ा देना जो लंबी दूरी तक दौड़ सके, थके नहीं, कम खाए कम पानी पिए तो भी ज़्यादा दौड़ सके, और इतनी दूरी तक वो चला जाए, कूद जाए कोई रास्ते में कोई नदी नाला है तो उसने ठीक है आप आ जाना, मैं दे दूंगा आपको शाम को घोड़ा। तो जब शाम को गए तो उस घुड़सवार के पास 2 घोड़े थे। एक घोड़ा बड़ा नॉर्मल सा पतला दुबला सा था, दूसरा घोड़ा अच्छा लंबा चौड़ा बड़ा सा था। तो घुड़सवार ने वो घोड़े वाला था, उसने वो पतला वाला और जो कमजोर सा दिखने वाला घोड़ा था वो उसको दिया। तो उसने कहा तुम हमारे साथ गलत काम होता है। क्यों? कि बोले ये घोड़ा क्यों दे रहे हो उनको, ये घोड़ा तो देख के कहीं लगता ही नहीं कुछ कर। नहीं, आपने कहा आपको लंबा जाना
आपने कहा बिना भूखे प्यासे चल लो, तो इसको आप लेके जाइए, ये घोड़ा आपको पहुंचा देगा आपको जहाँ लक्ष्य पे जाना। तो उसने कहा कि नहीं, ये घोड़ा हमें क्यों नहीं देगा, इस घोड़े में क्या खराबी है? बोला इसकी नानी एक बार पानी देख के रुक गई थी, डर गई थी। अर्थात जानवर में भी लोग ये ध्यान रखते हैं उसके संस्कार क्या है। एनिमल्स के भी कैरेक्टर्स, संस्कारों पे बात की जाती है इस देश में। तो क्या हम बच्चों के संस्कार पे बात नहीं करेंगे? बिल्कुल। तो जहाँ हम एनिमल के भी संस्कार देखते हैं, वहाँ आपको ये सोचना ही पड़ेगा कि हम बच्चों पे क्या संस्कार डालते हैं। Absolutely. So and then they run in the family. We say it runs in the blood. It runs. in the blood. That is what sanskar is. What runs in your blood is your sanskar. Right. And like you said, music plays a very important role. Right. Yeah, absolutely. Music, देखिए शब्द जो है, इवन बाइबल भी एक शब्द कहती है कि फर्स्ट देयर वाज द वर्ड, वर्ड से वर्ल्ड हुआ है। और ये सनातन धर्म की थ्योरी है कि शब्द से, नाद से सृष्टि उत्पन्न हुआ है। तो सृष्टि की उत्पत्ति जो है नाद से हुई, नाद शब्द है। शब्द सृजन, तो किसी भी चीज़ के क्रिएशन से पहले शब्द आ जाता है, फिर क्रिएशन होता है। तो वो, और हमारे जो मंत्र हैं जिनको हम मंत्र कहते हैं, वो कई बार लोगों को समझ भी नहीं आते हैं कि जब बीज मंत्रों की बात होती है तो आई एम, होम, उन तरह के बीज मंत्र होते हैं। वो असल में क्रिएशन के वर्ड्स हैं सारे, क्रिएशन के, और उनसे वो तत्व क्रिएट होता है, और वो उस पर्टिकुलर देवता का आह्वान करने के लिए, और उससे देवता का आह्वान किया जाता है। तो मेरा एक पर्टिकुलर नाम है जिससे अगर मुझे मेरा बेटा बुलाएगा तो मैं भाग के चला जाऊँगा। हो सकता है कोई और नहीं उस नाम से मुझे पुकार तो नहीं, वो बुलाएगा मैं चला। उसी प्रकार से ये वो शब्द हैं जिनसे आह्वान देवता का किया जाता है। इसलिए उन मंत्रों का चैंट बहुत पावरफुल होता है, जरूर करना चाहिए। Okay. तो फेवरेबल होता है, आपकी प्रेगनेंसी के लिए फेवरेबल है, बच्चे को भी हेल्प करता है, और उन गुणों का भी आह्वान हो जाता है। जो उस देवता जी हाँ, उस गुण का आह्वान कर सकते हैं। तो हनुमान जी के मंत्र का अगर आप वो करेंगे चैंट, तो आप में वीरता, साहस आएगी। बढ़ नहीं रहा है, वो आएगा। अगर आप दत्तात्रेय के मंत्र को जाप करेंगे तो उस तरह का वो आएंगी। कृष्ण मंत्र को जाप करेंगे तो वैसा होगा। तो ये बिल्कुल साइंटिफिक है कि मंत्र से आप वो क्वालिटी का इन्वोकेशन कर सकते हो। इसको गुण आरोपण भी कहा जाता है, कि जैसे हम अच्छे अच्छे बीज चुन के लगाते हैं, ऐसे गुणों को हम चुन के लगा सकते हैं। तो वो इस वजह से साउंड की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। साउंड अपने आप में साइंस है। साउंड हीलिंग कर देता है। आजकल बहुत लोग साउंड हीलिंग पे काम कर रहे हैं, साउंड से हीलिंग हो जाती है। तो साउंड हील करता है। साउंड सेल कल्चर्स में साउंड जब यूज़ की गई तो इसमें आया गया कि सेल ग्रोथ को अफेक्ट करती है साउंड। साउंड कुछ लोगों ने यूज़ करी कहीं पे टिश्यूज़ को ग्रो करने के अंदर। तो डेफिनेटली इट हैज़ गुड इम्पैक्ट। साउंड के एग्जाम्पल से मैं पहले भी पॉडकास्ट में एग्जाम्पल दे चुकी हूँ। जब व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, मेरे एक अंकल हैं, सो वेरी इवॉल्व्ड स्पिरिचुअल काइंड ऑफ पर्सन, तो उनके लाइफ लेसन पर प्रेशर्स होता है। सो उन्होंने एक बड़ी छोटी सी चीज़ सिखाई थी हम लोगों को कि अगर आप किसी से प्यार से बात करते हैं तो सामने वाले को सुन के बहुत अच्छा लगता है, आपको मिल के बहुत अच्छा लगता है। तो वो जो अच्छे तरीके से बात करी हुई चीज़ है उसको देव मंत्र बोलते हैं। अब आपने किसी से गुस्से में कह दिया, उसने तो आपसे कुछ कहा और आपने उसको पलट के गाली दे दी, वो कर दिया, वो गाली आपकी दूसरे जने के अंदर 7 दिन तक हलचल मचाती रहेगी कि इसने मेरे साथ ऐसा किया क्यों। तो ये एक दानव मंत्र था जिसने उस माहौल को बिगाड़ दिया। दैट इज़ द पावर ऑफ साउंड। सो आई थिंक दैट रियली स्टेड विद अस कि हाँ, तो सृष्टि में बहुत सारी चीज़ें साउंड से क्रिएट हुई। साउंड तो जैसे पेड़ पे जैसी को नोबेल मिला उनको, आप पेड़ को ग्रोथ को आप साउंड से Absolutely. पेड़ पे अगर साउंड ग्रोथ पे काम हो रहा है तो बिल्कुल। इंसानी ग्रोथ पे साउंड का क्यों इट नहीं इज है? प्रूवन कि गाय भैंस जो है बेटर मिल्क प्रोडक्शन देती है अगर उनके पास म्यूजिक चलाते हैं या Lactation में लैक्टेशन कहते हैं में। कि इसीलिए मैंने आपको बोला कि जो तुम सुन रही थी उसी को वापस सुनो एट द टाइम ऑफ लेबर। आप वही लेबर में भी और ब्रेस्ट फीडिंग में भी जी ऑटोमेटिकली एवरीथिंग विल गेट काम एंड योर बेबी विल आल्सो स्टार्ट गेटिंग फिर सिंबल्स की भी मुझे मैंने इसमें काम देना सिंबल का बताया आपको। चरण पादुका स्वस्थ के जो सिंबल है, तो सिंबल्स की इसलिए इंपॉर्टेंस है कि अगर आप बछड़ा गाय का दूध पीता हुआ बछड़े का अगर इमेज बहुत जगह हमने देखी है, मोतिया में देखिए, वो इमेज सामने रखती है मदर, तो वो उसके अंदर लैक्टेशन को हेल्प करती है। अभी इतनी सिंपल सी चीजें आप ऐसा चित्र रख लें जिसपे बछड़ा गाय का दूध पी रहा है और आप You can feed. फीड करा सकती हैं। तो अब ये इतनी सिंपल चीजें हैं जो affirmations hai which you do in pregnancy, at the time of labor, then say while breastfeeding, and then the best part is there are different affirmations for the fathers also. So incorporating, because everybody needs some kind of say
manifestations which can work on their subconscious mind to help them deal with Right. that situation. जी, वो बहुत ज़रूरी है. absolutely. The couples who are using this book, what would be your advice to the couples who have thought about using this book or your program or Pretty Mom? So I'll say Garv Sanskar is the need of the hour. Absolutely. It is the need of that. There's no doubt about it. If we can produce better quality of human beings and we can inculcate better values, better dharma, feelings in a human being right from the womb stage, why not? Right. Why not? I think हम सबकी वो अब हम सबका वो धर्म हो गया कि हम ये करें, राइट? अगर हमने सोचा है कि हम एक दिव्य आत्मा का आवाहन कर रहे हैं, अपनी दुनिया में ला रहे हैं उसको, तो ये हमारा धर्म है कि हम उसको पहले वो दुनिया दें जो उसके रहने लायक तो हो. वो नहीं soil आप तो उसको- दें. नहीं तो फिर आप बिल्कुल. सस्टेन नहीं कर पाएंगे. बिल्कुल. आप उसको sustain नहीं कर Absolutely. पाएंगे. Absolutely. आपको environment देना ही पड़ेगा. How do you see the society being impacted by application of this science and also the मतलब the changing environment, उसमें आपको क्या नजर आता है toward the तो new मैं तो कहता generation? हूँ आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी समस्या जिससे हम जूझ रहे हैं, तो यही तो जूझते हैं कि ऐसे मानसिकता से हमको जूझना पड़ता है जिसमें डिस्ट्रक्टिव मानसिकता है पूरी, जी, जो बिना कारण के आपको चोट पहुंचाना, बिना कारण के आपको डिस्ट्रॉय करना, या तो है ना. तो अगर आप गर्भ संस्कार को अडॉप्ट कर लेते हैं और आप उन ह्यूमंस को गुड क्वालिटीज आप उनको इन होम ट्रेन करते हैं, तो फिर हो सकता है कि आपके पास में एटलीस्ट ऐसे डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन बींग्स की पूरी, आप नोट करें इस चीज को कि ज्यादातर डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन बींग्स जो क्रिएट हो रहे हैं वो उस डिस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट से ही क्रिएट हो रहे हैं. absolutely. तो आप अगर ये समझ जाएं कि एक प्रेग्नेंट मदर के लिए राइट एनवायरनमेंट अगर हम देंगे और वो उस नेगेटिव एनवायरनमेंट में नहीं रहेगी, तो संभव है कि ऐसे ह्यूमंस आए जो संसार का बेटरमेंट की बात सोचे रादर देन कि संसार में और ज्यादा जी, डिस्ट्रक्शन की बात सोचे. बिल्कुल. तो विध्वंसकारी स्थान में और विध्वंसकारी स्थितियों में विध्वंसकारी बालकों का ही जन्म हो रहा है. तो ये तो हमको इस पे क्वेश्चन होना ही, जैसे योग, मैंने आपको कहा कि योग भी एक पूरा एक गिफ्ट है टू मैनकाइंड फ्रॉम द कल्चर ऑफ भारतीय संस्कृति की तरफ से, उसी प्रकार से भारतीय सनातन संस्कृति की तरफ से ये अनदर गिफ्ट टू द मैनकाइंड है गर्भ संस्कार, जो बियॉन्ड बॉर्डर्स यूज किया जाना चाहिए, बियॉन्ड बाउंड्रीज यूज किया. So अगर आप अपना Absolutely. आहार, व्यवहार और और विचार, विचार, ये तीनों absolutely. चीज चेंज कर सकते हैं, you have the capacity to change the Change world. the world and make it a much better Much and a better beautiful place. state. And like it's so right कि पहले वो दुनिया तो क्रिएट करिए जो उस लायक तो हो जिसमें आप जिस उस बच्चे को लेके आ रहे लेकर हैं. आएंगे. अगर वो उस लायक ही नहीं है तो फायदा क्या? Exactly. और बिल्कुल. नहीं भी क्रिएट करें तो मैं तो कहता हूँ उसको डिफेंड करने के लिए तो हमें लोग चाहिए, ये भी तो बात वो है. भी तो है. So, सुभद्रा बने, यशोदा मैया बने, जीजाबाई माता बने, ताकि जो आपके घर मूल में हमारे मूल्य बिल्कुल है उनकी जी. डिफेंड हो सके, जो धर्म के बिल्कुल. जो मूल कर्तव्य है उनका वापस रीएस्टेब्लिशमेंट हो सके, Absolutely. इसके लिए भी जरूरत है. बिल्कुल. Absolutely, absolutely. Thank you so much for all this knowledge, all this wisdom. I hope all you couples out there, they're supporting families, they're supporting partners. आप लोग आज बहुत कुछ शायद इस जगह से लेके जा रहे होंगे, which is priceless. Please go for it. It's worth it. We promise you it's worth it. चल के देखिए इस रास्ते पे, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत दुनिया क्रिएट करेगा and you will love it. Thank you so much for being with us. Thank you.